Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. This channel is full of knowledge. Knowledge has no boundaries, limitations. I am sitting in Delhi. You are sitting in every corner of India and taking benefit from these videos. The endeavor of channel is to give more and more knowledge, more and more power in your hands. It is up to you how much you can draw from this ocean of knowledge that is this channel created by me. Now we have more than 2,800 videos on this channel, and each and every video give you direction either in motivation or news or information about banking or the direction of study. It is up to you how many videos you can watch on daily basis. Develop the habit of watching 5 to 10 videos on banking, economic and financial awareness. That will give you insight, in-depth knowledge, improve your knowledge level so that you can tackle all the exams in banking and insurance industry. The link of this beautiful playlist incorporating 191 video is available in description and comment column, and this is free of cost. Usually such videos may cost you 1,000 rupees, 2,000 rupees, but this is only channel where I am providing this free of cost because I want you to be knowledgeable, powerful to crack the examination. To supplement these videos, we require the information about daily news that is happening in the world of economics, finance and banking. So now we are making videos on daily basis which covers the important news, selected news from where questions can come from these areas. So if you watch these videos along with 5 to 10 previous videos, it will fill the entire gap that you should have. So today information is government is planning to merge CBDT with CBIC. CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. CBIC stands for Central Board of Indirect Taxes and Customs. So this integration will save lot of cost at Government of India level. Because the staff requirement will reduce, hence the job opportunities in central government will also fall. But central government will save money by not paying salaries to these employees. The existing infrastructure will be sufficient to meet their future demands also, and people will retire and subsequently they will save money on their salaries and they will not recruit the new people. So that is how now government is tackling the COVID-19 situation. Scrapping certain position, merging certain organization, saving on cost, but it will have negative impact on youth because they will not get the job in these organizations. So another news is credit demand is slowing down. So in earlier days, there was some hope that credit is now bouncing back. But if we read the data between 5th June and 19th June, the credit demand is slowing down. That means more and more people are now paying their credit outstanding and less people are now availing the credit facilities due to uncertainty around them. Low interest regime is critical for bank survival, KV Kamath says. So eminent banker KV Kamath says the low interest regime has to continue for some more time so that banks are able to survive or have the cushion for future shocks. The next is more and more borrowers are now opting out of moratorium with unlocking of economy. So another study says as more and more cash flow is coming, more and more industries are unlocking. So now they are willing to pay back the banks. So they are stepping up their payment and moving out of moratorium. ICICI Bank hikes pay up to 8% of its employees due to extraordinary work done by its employees during COVID-19. So they are rewarding their employees
for working efficiently during COVID-19. The next is Indian government is reviewing around 50 investment proposals involving Chinese investment under screening policy. So these 50 projects may be affected because they are reviewing whether Chinese investment should be allowed or not. Canara Bank and Bank of Maharashtra cuts MCLR by 10 or 20 basis points respectively. That means Canara Bank has cut 10 basis points, Bank of Maharashtra has 20 basis point MCLR. MCLR means marginal cost lending rate. And these details of these terminologies are available in the playlist of banking awareness videos. The moment you watch these videos, you understand these terms, and then it will be easier for you to understand daily news. And that's why I am emphasizing that you must watch 5 to 10 videos daily from banking, economic and financial awareness playlist. This will give you clarity about these terminologies that is very frequently used in the news. But unless you are aware about these terms, you will not be able to understand the news. So first you have to build your foundation. This foundation will help you to understand banking, financial and economic concepts that will help you to save time. And you will be successful in banking exams and interviews including GDs. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. ये जो आपका चैनल है ये नॉलेज की खान है. नॉलेज इज नॉलेज इसके अंदर स्पिल ओवर हो रही है, पर आप इसमें से कितना ले सकते हैं. जैसे समुद्र होता है उसमें से कितना आप पानी ले सकते हैं ये आपके ऊपर है. इसमें नॉलेज की कोई कमी नहीं है चैनल के अंदर. 2800 वीडियोस आज की डेट के अंदर मैंने इस चैनल पे डाल दिए जो भरपूर है नॉलेज से. आप 5, 10, 20 वीडियोस पर डे देखते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और इट विल टच द स्काई. पर ये आपके ऊपर है, आप कितनी आदत डाल पाते हैं. 2350 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, उन्होंने आदत डाल ली है 5 से 10 वीडियो वो मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के जरूर देखते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है. और जैसे जैसे वो ये वीडियोस देखते जा रहे हैं उनकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, उतना ही वो नई चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हैं. और जितनी आसानी से समझ पा रहे हैं उतना ही उनका मॉक टेस्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आती चली जा रही है. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी. जितनी आपकी चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आप और लोगों से आगे निकलते जाएंगे और आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ता जाएगा. तो 192 वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की. 5 से 10 वीडियोस रोज देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ऐसे वीडियोस नॉर्मली कोई 1000 रुपये में देता है, कोई 2000 रुपये में देता है. मैं आपको सारी नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ. जो कुछ मैंने इस दुनिया से सीखा है वो सब मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में. ये आपके ऊपर है कितना आप उसमें से ग्रैंड करते हैं. फिर इस नॉलेज को सप्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि जो रोज़ की न्यूज़ आ रही है वो भी हमें पता होनी चाहिए. क्योंकि जो डेली न्यूज़ है ये हमें मदद करती है क्वेश्चंस को क्रैक करने में. काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. तो रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं हम डेली न्यूज़ का. अब इसका बेनिफिट आप क्या लेंगे, इस वीडियो को भी आप देखिए और 5-6 वीडियोस पुरानी देख लीजिए ताकि पिछले 2-3 महीने की न्यूज़ आपकी कवर हो जाए और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने हैं. उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो आज की न्यूज़ है, गवर्नमेंट सोच रही है CBDT और CBIC को मर्ज करने की. CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. CBIC का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों के जो बोर्ड है उनको मर्ज कर देंगे. मर्ज करने से क्या फायदा होगा, स्टाफ रिक्वायरमेंट घट जाएगी तो गवर्नमेंट के पैसे बच जाएंगे स्टाफ को सैलरी देने के, और नए लोगों को भर्ती नहीं करने की जरूरत पड़ेगी. रिटायर होते जाएंगे, उसी स्टाफ से काम चला लेंगे. तो अब सरकार को पैसा तो बचाना है क्योंकि टैक्स नहीं आ रहा. तो जहाँ जहाँ वो वैकेंसीज को अबॉलिश कर सकते हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. पर ये सरकार के लिए खर्चा बचाने के लिए तो ठीक हो सकता है, पर यूथ के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है. नेक्स्ट है क्रेडिट डिमांड इज स्लोइंग डाउन. 5 जून से 19 जून के बीच ये देखा गया कि क्रेडिट की डिमांड भी घटनी शुरू हो गई है.
और इसके दो कारण नजर आ रहे हैं। एक ये क्योंकि एक्टिविटीज अनलॉक हो गई है तो काफी बारोअर ने पैसा वापस करना शुरू कर दिया, और कुछ बारोअर ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अब उनके पास खुद पैसा है तो उनको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। पर ये ट्रेंड कंफर्मेशन कुछ डेटा और आने के बाद होगा। इसके बाद कि मिस्टर केवी कामत जो कि एक एमिनेंट बैंकर हैं, उन्होंने कहा कि लो इंटरेस्ट रेजीम क्रिटिकल है बैंक सर्वाइवल के लिए। अगर बैंकों को सर्वाइव करना है, बैंकों को आगे बढ़ना है, तो इस लो इंटरेस्ट रेजीम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा खबर है कि अधिक से अधिक बारोअर्स अब मॉरेटोरियम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। क्यों ऑप्ट आउट कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एक्टिविटी शुरू हो गई है, कैश फ्लो स्टार्ट हो गया है, तो वो इंटरेस्ट बर्डन नहीं लेना चाहते, तो वो धीरे धीरे पैसा वापस करने लगे हैं और मॉरेटोरियम से जो बारोअर्स हैं वो बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह 8% बढ़ा दी है, और ये रिवार्ड दिया है उन एम्प्लॉइज को जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अच्छा काम किया। तो मैनेजमेंट ने ये देखा कि हमारे एम्प्लॉइज ने बिना डरे हुए मेहनत के साथ कोविड-19 में भी बैंकिंग को चलाया है, तो उससे उनको प्रॉफिट हुआ बैंक को, तो उन्होंने इसको रिवार्ड दिया, अपने एम्प्लॉइज को 8% तनख्वाह बढ़ा दी है। इंडियन गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है 50 से अधिक ऐसे प्रपोजल जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट है स्क्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत। केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने MCLR 10 बेसिस और 20 बेसिस पॉइंट गिरा दिए। तो केनरा बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट MCLR को गिराया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 बेसिस पॉइंट अपने MCLR को गिराया। MCLR का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। अब जैसे ये टर्म आ गया, अब अचानक हम कहेंगे MCLR क्या है। अब ये कैसे पता लगेगा? जो मैंने आपको 192 वीडियोस की प्लेलिस्ट बताई है, उसमें ये सारे टर्म्स कवर हैं। अगर हम 5 से 10 वीडियो रोज देखते हैं तो इस तरह के टर्म्स क्या हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें पहले से पता होगा। तो जब हम करंट न्यूज पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है हमारे साथ। पर मान लो हमें पता नहीं MCLR क्या है, खबर आ गई तो ये खबर हमें समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर 5 से 10 वीडियो रोज भी देखना शुरू कर देंगे तो 192 वीडियो आपके 40 दिन में कवर हो गए। फिर आपने रिवाइज कर लिए, फिर तीसरी बार देख लिए, तो वो कंसेप्ट आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपकी जो नॉलेज है वो फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, बैंकिंग की इतनी गूढ़ हो जाएगी कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता। फ्री है वीडियोस, और छोटे छोटे टाइम के हैं, कोई 4 मिनट का है, कोई 3 मिनट का है, तो आधा 1 घंटा निकालना पूरे दिन में कोई मुश्किल काम नहीं है। और हैबिट पड़ जाएगी तो और भी वीडियोस आप देख सकते हो। 2800 वीडियोस हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी बात बताई हुई है, आपका फायदा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।